So hello my dear friends and my dear viewers. So in today's video we are going to solve the question number 4 of GS1 paper 2021. We are going to solve from the geography section. See here the GS1 Indian heritage, culture, history and geography of the world and society. So here the question asked us that differentiate the cause of landslides in the Himalayan region and the Western Ghats. So see, if you are a dynamic thinker, then you can easily get 2 to 3 points. If you are like, if you are also studying in class 9, 10th, 11th, 12th, so you can think about this answer. So let's think. So see, what should be the approach of this answer? See, what should be the approach? To tell about the reasons why landslides occur in both the areas, it is very common. Why the landslides occur in both the areas, it is very common. Now, place of occurrence. So now my friends, we need to mention place of occurrence, landslide occurrence in the areas due to man-made activities. So see, we need to mention the reasons of landslide occurrence in the areas of Western Ghats and Himalayan region, and the reason of landslides due to man-made activities such like projects, etc. we will know in the later video. So see, Western Ghat and the Himalayan region. To make differentiation, you need to draw a line for good answer writing purposes. But see, as always I told you, this is not the proper answer writing. This is an approach. Answer writing is different, approach is different. This answer will contain all the important point that you have to mention in your answer writing. So see, Western Ghats, heavy mining activities in the Western Ghats is one of the things which causes landslide in these areas. So see, I will explain it later after explaining the Himalayan region landslide cause. Himalayan region, due to the formation of Himalayas by the young fold mountains, the seismic activities in these areas are not balanced, which causes landslides in this area, in these areas. So my friend, first of all, what is landslides? Landslides आखिर में होता क्या है? लैंडस्लाइड्स के बारे में जानना, अर्थक्वेक के बारे में जानना, ड्राउट के बारे में जानना, फ्लड के बारे में जानना, सुनामी के बारे में जानना, ये सब हम लोग, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जानना, ये सब हम लोग रट लेते हैं. लेकिन आखिर में लैंडस्लाइड का डिफिनेशन क्या है? सो सी, द स्लाइडिंग डाउन ऑफ अ बेडरॉक लेयर फ्रॉम अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड इज नोन एज लैंडस्लाइड. जब एक लैंड से एक पर्टिकुलर पार्ट का बेडरॉक घिसक के चला जाता है वहाँ से, तो उसी को हम लोग कहते हैं लैंडस्लाइड्स. अब ये क्यों होता है? अभी हम लोग बात नहीं करेंगे वेस्टर्न घाट या हिमालयन रीजन का, पहले बात कर रहे हैं ये क्यों होता है. देखिए, इसके पीछे कुछ कॉमन रीजन है. ये दोनों में से बहुत सारे कॉमन रीजन होते हैं. पहला जो कॉमन रीजन होता है वो होता है रेनफॉल. देखिए, जब बारिश होती है ना, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि जो लैंड के पार्टिकल्स रहते हैं सॉइल के, वो टाइटली पैक रहते हैं, कॉन्सोलिडेट रहते हैं. लेकिन जब रेन आती है तो बीच गैप्स में पानी भर जाता है. उसके कारण जो लैंड है वो, उसका जो लेयर्स है वो लूज होने लगते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर सकता है. दूसरा जो है वो होता है अर्थक्वेक्स या सिस्मिक एक्टिविटीज़, आप जो कह सकते हो. इसी कारण क्या होता है, देखिए जाहिर सी बात है, अब लेयर्स में ही जब हलचल होगा तो बेडरॉक्स तो नीचे आएंगे, इसीलिए अर्थक्वेक भी एक रीज़न. और तीसरा होता है हमारा मैनमेड एक्टिविटीज़. अब देखिए क्यों. सपोज किसी एक एग्जाम्पल, एक पत्थर है, सपोज दैट इट इज़ अ स्टोन, and if you will carve in between of this stone with the help of a hammer, if you will hammer this stone, then the stone will break into 2 parts. उसी तरह जब हम लोग लैंड्स में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा हाउसेस बनाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, लैंड्स का जो लेयर होता है वो कमज़ोर होता है और हो सकता है हिली एरियाज़ में एक टाइम पर वो जाकर के खिसक जाए. ठीक है, तो ये मेनली 3 कॉमन रीज़न होते हैं लैंडस्लाइड्स के. अब देखिए अलग अलग रीज़न क्या है. वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटीज़ है. खास करके जब वेस्टर्न घाट्स का बात कर रहे हैं, इधर का जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है, जैसे क्रूड ऑयल्स के लिए, पेट्रोलियम जेली के लिए वगैरह, बाकी का जो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हम लोग
माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं इधर के लिए वेस्टर्न घाट्स में। साथ ही साथ वेस्टर्न घाट की बात हो ही रही है तो डिकेन प्लेट्यू में आप ज़्यादातर माइनिंग एक्टिविटीज़ देखोगे, जैसे झारखंड के एरियाज़ में, छत्तीसगढ़ के एरिया में, उड़ीसा के एरिया में। यहाँ पर आपको वर्ल्ड फेमस माइंस मिल जाएंगे, कोल के, डायमंड के, यूरेनियम के, सो निकल के और बाकी सब के, टिन के, माइका के। सो सी माइनिंग की वजह से वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पर तकलीफ होती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं यहाँ पर माइनिंग की वजह से। आप इसको ऐसे समझिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। सॉरी फॉर द डायग्राम बट द स्पेस इज़ नॉट वेरी मच। यहाँ पर आप सत्यपुरा और विंध्याचल रेंज से आप एक डिवाइड का फॉर्मेशन कर देते हो फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड एंड द सदर्न साइड, ठीक है। अब देखो आप सदर्न साइड में अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू का बना हुआ है, ठीक है। मतलब सिर्फ डेक्कन प्लेट्यू नहीं, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो ये सब बहुत सारे प्लेट्यूज के मिक्सचर से ये पूरा सदर्न रीजन हमारा मेनली बना हुआ है। बिहार के बाद से झारखंड से जो शुरू होता है वहाँ से। अब आप देखो यहाँ से जैसे आप देखोगे तो गुजरात का जो इलाका है, यहाँ पर रण ऑफ कच्छ, फिर देली रिज, उसके बाद कार्डामम हिल्स और यहाँ पर राजमहल हिल्स, ये आप देखोगे तो एक काइट टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पूरा प्लेट्यू, ये पूरा सी यहाँ पर आपका आ जाता है राजमहल हिल्स, ये आपको बन जाता है पूरा प्लेट्यूर पार्ट। अब यहाँ पर देखोगे तो इस साइड पर डेक्कन प्लेट्यू है, इधर पेनिनसुलर है, इधर छोटा नागपुर है। तो आप ये प्लेट्यूज में देखो ना तो दुनिया भर का माइनिंग होता है। और आप एक चीज़ गौर करोगे, यहीं पर रेड एंड येलो सॉइल भी है, मिनरल सॉइल जिसको कहते हैं, फेरस सॉइल, मिनरल सॉइल। सो अब देखो यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ होता है जिसके कारण लैंडस्लाइड्स होता है। लेकिन भाई यहाँ पर क्या है, ये वाला जो लैंड है यहाँ पर तो कोई मिनरल्स नहीं भरे हुए हैं, ये तो सेसमिक एरियाज है। तो यहाँ पर अर्थक्वेक के कारण ज़्यादातर यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होता है। सो वेस्टर्न घाट में मेन रीज़न क्या है, वेस्टर्न घाट में मेन रीज़न है माइनिंग एक्टिविटीज़, और हिमालय रीजन में क्या है, सेस्मिक एक्टिविटीज़। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड थिंग का। सो डिफोरेस्टेशन एंड बिल्डिंग रोड्स एज वेल एज हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेशन एट द कॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द वेस्टर्न। सो सी माई फ्रेंड्स, मैंने जैसा आपको कॉमन चीज़ बताया। अब जैसे देखो वेस्टर्न घाट्स कुछ लोग समझते हैं कि प्लेट्यू है, नहीं वेस्टर्न घाट प्लेट्यू नहीं है। अब देखते तो सीरीज ऑफ माउंटेन चला आता है, ठीक है। ये जो माउंटेन है इसी को कहते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट्स, और उसी तरह ईस्टर्न घाट्स में भी माउंटेन है, लेकिन ये मतलब सीरीज में नहीं है, डिसकंटिन्यूड रेंज है, ठीक। तो अब ये माउंटेन्स में कभी कभार लोग रहते हैं, वो यहाँ पर बहुत सारा लैंड वाले एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, बहुत सारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड्स का बहुत ज़्यादा कारण होता है। अब आप एक चीज़ मेरे को बताओ, एक कॉमन सा चीज़ है, क्या कभी लैंडस्लाइड्स प्लेन एरियाज़ में होगा? लैंडस्लाइड्स वही ना होगा जहाँ पर पहाड़ वाला एरिया है या फिर हिली एरिया है या फिर प्लेट्यू वाला एरिया है। क्या कभी प्लेन्स में लैंडस्लाइड्स होगा? नहीं होगा। सो यहाँ पर माउंटेन है घाट्स में, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड्स क्यों हो रहा है? क्योंकि बिल्डिंग ऑफ रोड्स, यहाँ पर रोड्स बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जब मैन मेड एक्टिविटीज़ होती है तो उसके कारण क्या होता है कि जो लैंड्स के पार्टिकल होते हैं ना, उसमें वो एक दूसरे से पूरे अटैच बाइंडिंग फोर्स में नहीं रह पाते, वो अलग होने लगते हैं, धीरे धीरे फिर लेयर खिसक जाता है। तो मैन मेड एक्टिविटीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इन द वेस्टर्न घाट्स, नॉट सिर्फ इन वेस्टर्न घाट्स बल्कि पूरा का पूरा ये जो आपका है ना डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बाकी जो पूरा सदर्न मोस्ट रीजन है, सेंट्रल इंडिया के बाद का, सेंट्रल इंडिया से लेकर के पूरा सदर्न मोस्ट रीजन तक अगर कहीं पर लैंडस्लाइड्स हो रहा है तो मेनली यही रीज़न है। या तो मैन मेड एक्टिविटीज़ होगा या फिर एक और रीज़न है जो मैं आपको आगे बताऊंगा नेचुरल में। सो सी, लेकिन यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है? द सेडिमेंट ऑफ द रॉक्स आर लूज एंड नॉट कंसोलिडेटेड बाय विच लैंडस्लाइड्स ओकर वेरी इजीली एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। देखिए, हालांकि ये दो पॉइंट्स आप पर में एक दूसरे से सिमिलर ही लग रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जो लैंड्स के पार्टिकल है उसको लूज कैसे करते हैं? मैन मेड एक्टिविटीज़ कर करके। लेकिन ये जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है ये अभी पूरा तरह से, जैसे आपको बताऊँ मैं, तो जो पूरा का पूरा पार्ट है ना ये पेनिनसुलर इंडिया, ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लैंड से बना हुआ है। पूरा का पूरा सॉलिड, रिजिड, एकदम स्टेबल लैंड है। जो हम लोग बात करते हैं ना पूरा प्लेट्यू वाला लैंड, पेनिनसुलर लैंड, ये स्टेबल लैंड है। लेकिन हिमालय लैंड क्या हुआ है? अभी फॉर्म हुआ है, मतलब इन द सेंस अभी नहीं, मतलब बहुत मिलियन ईयर्स पहले, लेकिन
जियोग्राफिकल टर्म्स में ये इनका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए ये जो इसके जो पार्टिकल्स हैं ना लैंड के, ये आपस में कॉन्सोलिडेटेड उतने नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर लैंडस्लाइड ऑकर होते रहता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग मैनमेड एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके द्वारा जो लेयर्स हैं इनमें खिसकाव आता है और इसलिए लैंडस्लाइड्स होते हैं। सो दिस थर्ड, anthropogenic activities, rains, gravitational pull and well geomorphic processes highs the risk of landslide in this area। लेकिन देखिए मैनमेड एक्टिविटीज़ के बाद मान के चलिए कभी इधर भूकंप आ गया। अब भूकंप क्यों आता है, सवाल ये भी है, क्योंकि ये तो एक स्टेबल लैंड है। भूकंप आने का चांस है बिकॉज ऑफ द भीमा फॉल्ट। आपको पता होगा रिवर भीमा की वजह से जो भीमा फॉल्ट बनता है उसके कारण इधर थोड़ा सा जो स्टेबल लैंड है उसके कारण इधर भूकंप आ सकते हैं, इसीलिए इधर जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है, इधर थोड़ा बहुत जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है, जैसे इससे रिस्क बढ़ता है। ठीक है, पूरा का पूरा लैंडस्लाइड्स नहीं कह सकते, इससे रिस्क बढ़ता है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो रहता है कॉन्सेंट्रेटेड रेन्स का। अब जैसे देखिए बहुत ऑब्वियसली बात है, जो इंडिया है उस पर आती है साउथ वेस्ट मानसून, और इस साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से आती है, इट कम्स फ्रॉम दी वेस्टर्न घाट्स। सो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड रेन्स होती है, डायरेक्ट यहीं पर रेन्स होती है, उसके कारण क्या होता है, फिर वही कॉन्सेप्ट है, लैंड लूज होते हैं, फिर स्लाइड्स हो जाता है। ठीक है यहाँ पर, लेकिन अब देखिए इसमें क्या रीज़न है, ड्यू टू अनस्टेबल लैंड्स इन द हिमालयाज टेक्टोनिक एक्टिविटीज इज फ्रीक्वेंट एंड लैंडस्लाइड्स कॉमनली अकर ड्यू दिस। क्योंकि यहाँ पर भूकंप आने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी ज़्यादा रहता है, यहाँ पर लैंड रहते हैं ना वो हमेशा घिसकते रहते हैं एक दूसरे पर। जैसे ये आ गया आपका यूरेशियन प्लेट और ये आ गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे, ये ऐसे ऐसे हमेशा होते रहता है, लैंड आपस में ही घिसकते रहते हैं, इसलिए यहाँ लैंडस्लाइड का चांसेस बढ़ जाता है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स की। सो मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक विंडमिल प्रोजेक्ट, डैम्स एटसेट्रा विल बी ऑल्सो द रीजन फॉर स्लाइडिंग डाउन द बेडरॉक लेयर इन दिस साइड। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आंसर राइटिंग, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पर आपने लैंडस्लाइड टर्म यूज़ नहीं किया, हर बार लैंडस्लाइड करते करते थोड़ा सा ऐसा बोरियत जैसा लगता है। सो you should use the definition of landslide, that major project like windmill projects, dams, this highest the risk of, or we can say these are also the reason for landslides in the western Ghats, but not such major projects can influence landslide here। यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता। अब आप ही बताइए, टेल मी, कैन वी बिल्ड windmills in the Himalayan region? It is not possible because of the absence of a stable land. So these projects doesn't influence major landslides in these areas, but what influence it influence the building of long and wide roads as well as building a large number of houses will increase the chance of landslides। अब देखिए दोस्तों, see, when I was traveling through Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, so I thought a question, I asked myself a question, why don't bro widened the road? See, 1962 में ब्रो की स्थापना हुई थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड्स को, जो माउंटेन में रोड होता है वो उसको चौड़ा क्यों नहीं बना देता? व्हेन यू विल ट्रैवल थ्रू द माउंटेन हिमालय रीजन यू विल सी वेरी नैरो रोड्स विच इज़ वेरी रिस्की। जैसे जोरजिला पास आप यहाँ पर कभी जाओगे ना तो याद रखना कि बहुत रिस्की जगह है, हो सकता है कि आपको चक्कर वक्कर भी आ जाए, तो उसके कुछ अलग कारण है। लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसे रोड्स नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा वाइडेंड होगा रोड इट विल हाईएस्ट द चांस ऑफ लैंडस्लाइडिंग है। और बिल्डिंग्स जैसे बहुत सारे घर बनते हैं ना हिमालयस पर, उससे जैसे मैंने आपको बताया कि मैन मेड एक्टिविटीज जितनी ज़्यादा होगी लैंडस्लाइड्स उतना ज़्यादा हो। वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट ना। हमारा ये जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितना भी अप्रोच वाला ये चीज़ थे, जैसे लैंडस्लाइड्स अकर इन बोथ एरियाज, मैन एक्टिविटीज़ वाली ये हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं प्लेसेस ऑफ ऑकरेंस। एग्जाम्पल आप दे सकते हो या इंक्लूड कर सकते हो इसी में, रत्नागिरी सातरा वेस्टर्न घाट्स में, और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा उत्तराखंड में जो है वो हिमालयन रीजन। दीज आर द मेजर लैंडस्लाइड्स प्रोन एरिया। और या तो अगर आपको मार्क्स चाहिए मोर, लेबलिंग करोगे तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ऐसे आप लेबलिंग भी कर सकते हो। ये रहा आपका, जैसे आप यहाँ पर लेबलिंग भी कर सकते हो, आप इंडिया का मैप बना करके
अब इंडिया का मैप बना करके सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग बट आई वांट टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। सो आप इंडिया का मैप बना के ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब याद रखना यहाँ तक आ जाता है आपका हिमालयन रीजन, उसके बाद इधर नेपाल वाला है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। इधर हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है, ये प्लेन एरिया है, यहाँ लैंडस्लाइड्स नहीं हो सकता। और उसके बाद इधर सिक्किम से फिर ये आप कर सकते हो हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड्स। सेम इधर हिल्स की तरफ आप कर सकते हो, रत्नागिरी वगैरह तरफ ऐसे आप दिखा सकते हो वेस्टर्न एरियाज, इसको आप क्रॉस कर सकते हो ऐसे करके। सो यू कैन चॉइस द वे ऑफ योर डायग्राम फॉर गेटिंग मोर मार्क्स। इट इज ओनली एन अप्रोच, seriously it is only an approach, not the answer writing at last. So thank you, bye bye all my dear friends.